So, did you get a campus placement? That how did you grab your first job? मैंने फिर बहुत मेहनत करी 4th ईयर में, अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सब कुछ किया, ब्रशअप किया, और देन आई लैंडेड एन इंटर्नशिप एट टाटा डिजिटल एक्चुअली। 3rd ईयर में आया एक्चुअली, और वहाँ मुझे फेलियर्स मिले, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, राइट। और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में? हाँ, ब्रीफ में बताइए। पहले तो राउंड बता दिए, 4 राउंड हुए थे। आप क्या राउंड? 5 राउंड 5 राउंड हुए थे। क्या राउंड हुए थे? एक मैनेजरियल राउंड। हाँ, क्या राउंड हुए थे आप बताएंगे? एक डीएसए कोडर पैड राउंड होता है, वो हुआ है। क्या हम जावास्क्रिप्ट में डीएसए कर सकते हैं? देखो, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कोड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए आपका कोड, है ना, रीयूजेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, टेस्ट केसेस लिखे होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सारी चीजें आती हैं उसमें। I will say all the best to everyone who is doing, whether you are fresher, whether you are experienced. Let me tell you guys, follow the right person, believe in yourself, trust in yourself, and just keep doing it. Because if you do it, nobody but I think God is actually seeing you and will give you the right moment to taste the part of success that you want. So, hello everyone. Today I have Abhay Goyal with me. He is right now working in Goldman Sachs. And today I am going to talk to him a little bit about his journey, how he started and how he reached there. He has recently got a very good hike in his company. So, and when he made a switch to this Goldman Sachs company. So, let's connect with him. Let's talk to him and welcome Abhay to the podcast. And I would love to know about your journey. So, uh, can you tell me a little bit about yourself? Like, what do you do? Where are you from? Right. First of all, thank you for bringing me to this podcast, Akshay. And a short introduction about me. So my name is Abhay Goyal, and I've done bachelor's from KIT University, Bhubaneswar. My hometown is from Kolkata, West Bengal. And my first job was Tata New, since I was recently passed out in 2023. Okay. And I shifted to Mumbai to experience the new software development journey that I will begin with. And working there, experiencing different tech stacks I worked on and upscaling myself, I finally reached to one of my dream company, which is Goldman Sachs. And right now I'm working in Bangalore, India. So yeah. Okay, that's great. So, as you said, कि आप 2023 में pass out हुए, right? 23 Right. graduate. Right. So, in such a short span of time, it's like almost 1.5 years, right? Almost 2 years, I would say, right? Right. So, how did you achieve so much, right? I mean, and can you tell a little bit about your journey from the starting quickly, right? So did you get a campus placement? That how did you grab your first job? राइट सो आई विल टेल यू, मैं पूरा कैंपस प्लेसमेंट में बिलीव नहीं करता था उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे ऐसे होता था कि सिंस वी आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, तो देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन हुएवर सीटिंग्स, राइट। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई थी। तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड अलग से आपको डेवलपमेंट भी करना है, बट प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी, क्योंकि वी आर द बैच ऑफ कोविड। तो कोविड बैच में आने से हमें वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। सो व्हाट आई डिड, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि मैं 3rd ईयर तक मैंने कुछ नहीं कर रखा था। बट देन आई विल बी ऑनेस्ट हियर, मैं लिंक्डइन शुरू किया, अपना अकाउंट बनाया, मैंने देखा, तब मैं आपको फॉलो किया। धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कुछ होता है, बैक एंड होता है। मैं बाकियों को भी फॉलो किया, एंड देन by following you guys who were already experienced, and you guys were helping out some or the other way through your blogs, वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, और मुझे समझ में आया, ओके, व्हाट शैल आई डू राइट, व्हाट शैल आई हैव नॉट टू डू। तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और आपको ब्लाइंडली कुछ ही फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूर 10 चीज़ पहले देखना चाहिए, व्हाट आर द व्यू पॉइंट्स कैन बी ऑफ अदर, उसके हिसाब से आपको जो सही लगे, एक पकड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने अक्सर वही किया, मैंने आपका व्यू पॉइंट्स पकड़ा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया, आपकी बातों से, आपके तरीके से। एंड मैंने फिर बहुत मेहनत करी, 4th ईयर में अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सब कुछ किया, ब्रशअप किया, और देन आई लैंडेड एन इंटर्नशिप एट टाटा डिजिटल एक्चुअली। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली उस मोमेंट ब्लॉक कर दिया गया था, हमेशा प्लेसमेंट में जो होता है। एंड मेनी अपॉर्चुनिटीज आए थे, बट आई वाज नॉट एबल टू सेट। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सेटबैक था, बट मैंने सोचा मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जहाँ
इंटर्नशिप ले लिया हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँगा। क्योंकि फुल टाइम वाज़ नॉट श्योर कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने वहाँ पूरा अपना बेस्ट दिया। मैंने वहाँ काफ़ी सारी टेक स्टैक सीखी। फ्रंट एंड में मैंने बहुत ज़्यादा काम करा, रिएक्ट, ओके। नेक्स्ट.जेएस हाँ, 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 वगैरह। हाँ। एंड उस मोमेंट आप तब तक नमस्ते जावास्क्रिप्ट करा रहे थे एंड दैट वाज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज़ आई वाज़ हुँ। जस्ट स्टार्टिंग विद इट और मेरे को समझ में आया कि मेरा बेसिक्स वे नॉट क्लियर। तो मैंने धीरे-धीरे अपने बेसिक क्लियर करते-करते उस चीज़ को अपस्किल करा नमस्ते जावास्क्रिप्ट से और मैं आगे बढ़ता गया। एंड देन वन पॉइंट कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अंडरपेड हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसे जी। फ़ील होता कि मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी बस एक ही मिली है, मेरे को बाहर एक और चाहिए। बट जॉब मार्केट वाज़ वेरी टफ एट वेरी दैट टफ। मोमेंट। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मुझे है, ठीक है? अभी हाँ, अभी आप थोड़ा जॉब में चले गए, मेरे को थोड़ा-सा राइट। पहले क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि सबसे पहले तो आपने अपनी मुझे पता है देखो कॉलेज में लोग पढ़ाई तो करते नहीं है जनरली, राइट? हाँ, हम ऐसा राइट, नहीं कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करना शुरू करे और फोर्थ ईयर तक हुँ, पढ़ाई करे और फिर एकदम राइट, से अच्छी प्लेसमेंट लग जाए। आप ये बिल्कुल। बताइए कि आपने पढ़ाई करना कब शुरू किया? व्हेन वाज़ द तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू बिकेम सीरियस कि यार नहीं अब राइट, दिस इज़ द पॉइंट कि यार अब मुझे थोड़ा-सा करना है। राइट। कब? वो पॉइंट कब तो आया? सीरियस तो तभी हुआ मैं जब मैं फोर्थ थर्ड ईयर? ईयर में अच्छा, थर्ड ईयर में आया चलो एक्चुअली और वहाँ मुझे फेलियर्स मिले। ओके। बिकॉज़ यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स राइट? हुँ, हुँ। तो उस टाइम एटलासियंस एंड डिफरेंट बिग कंपनीज़ आई थी और दे उनमें वर आप इन नहीं अ क्रैक कर पाए। हाँ, वो मैं क्रैक नहीं कर पाया और मेरे फ्रेंड्स कर गए एंड ओह! सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका फ्रेंड कर जाता है ना आप नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है। सो इट वाज़ कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं तब तक अदर फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर रहा था। मैं टोटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं था। तो एक्चुअली ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि मेरे को फेलियर्स थोड़े कम पसंद है। लाइक आई एम लाइक कि अगर मेरे को फेलियर हुआ है तो मैं उसको ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा या फिर उस जगह को ही छोड़ दूँगा। दोनों में से कुछ एक होगा। देन आई रेक्टिफाइड माई सेल्फ मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये सारी गलतियाँ मैंने करी है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग बिट बाय बिट। हाँ, डिमोटिवेशन होता था बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूँ हुँ, कि हुँ। उनका इंटर्नशिप बैग हो रहा है, वो भी बड़े-बड़े कंपनीज़ में। इट्स नॉट लाइक हाँ। कि अ आप फ्री बैठे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बट हुँ। आई जस्ट केप्ट डूइंग इट मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मेरे को अगर डिमोटिवेशन फील होता था, यूट्यूब वीडियोज़ आर देयर टू मोटिवेट यू फॉर दैट सम टाइम एंड आई कीप लिसनिंग दैट मैं मतलब ऐसे हो गया था, ज़िद्दी हो गया था कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं सुनता रहूँगा, अपना करता रहूँगा या मैं देखना ही बंद कर दिया था। लाइक आई स्टार्टेड I stopped seeing more content. I used to see only the filtered one जो अच्छा, आप बस मुझे पढ़ाई का कंटेंट देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। राइट, राइट हुँ। जो मुझे सीरियसनेस फ़िल्टर्ड ज़रूरी है। हुँ। यस, तो मैं अपने फ़िल्टर्ड कंटेंट इतना अपने आप एक्चुअली क्या है ना वो मैंने एक सीरीज़ से सीखा था नेटफ्लिक्स के हाँ, एक हाँ। सीरीज़ से कि अपने आप को पहले आदत डालना सीखो, बिफोर यू डू समथिंग एल्स। ओके। तो पहले मैंने अपने आप को आदत डाला कि पढ़ाई करनी है, तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को करा, उस पे वर्क करा एंड धीरे-धीरे अच्छा। इवेंचुअली हो जाता है। मतलब मैं हुँ। ये मानता हूँ कि सबकी जर्नी अलग होती है। देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। मेरी जर्नी भी बहुत अलग थी, स्लो थी, ठीक है? और मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मैंने कभी हार नहीं माना। तो बहुत बढ़िया। दैट्स मेक्स मी डिफरेंट कि हुँ। आगे बढ़ते जाओ, सोचो मत एंड यू इवेंचुअली यू विल गेट टू द पॉइंट वेयर यू बहुत वांट ही टू बी। इंस्पायरिंग लाइन बोल दी आपने ये कि बस आगे बढ़ते जाओ, ज़्यादा सोचो मत। क्योंकि बहुत बच्चे मुझे ऐसा लगता है सोचने में लगा देते हैं, ये करें, वो करें, या करें, करेक्ट, ये नहीं करें, यहाँ से करें या फिर कहीं और से करें। ये सब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपकी पहली इंटर्नशिप लगी थी टाटा डिजिटल में, राइट? राइट। तो तो मुझे थोड़ा-सा रफली एक नंबर बताएँगे कि आपका क्या उस समय पे इंटर्नशिप पे क्या पैकेज था या उन्होंने पीपी ऑफर किया था? सो पीपीओ तो उन्होंने ऑफर नहीं किया था अच्छा, एंड इंटर्नशिप रफली एस्टिमेट अगर मैं आपको बताऊं तो इट वाज अराउंड 20 टू 30,000 ओके, मिलता था पर पर मंथ। मंथ। हुँ, हुँ। यस, और वो ऐसे था कि हमारा लाइक इट वाज मोर लाइक 10 टू 11 मंथ्स का वी वर प्रोग्राम। हैविंग व्हाट हुँ, पर्टिकुलर। सो हम लोग को उसमें ये बेनिफिट हो गया कि सिंस आई वाज फ्रॉम किट यूनिवर्सिटी हुँ। तो उन्होंने इंटर्नशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था ओके, हमारे कॉलेज, ओके। जनरली नहीं होते हैं। हुँ। तो बिकॉज इट वाज फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट थिंग, तो वो हमें मतलब फ्री कर दिए थे कि आप आराम से इंटर्नशिप करो, यू लर्न थिंग्स, तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग दैट आई फील कि हर कॉलेज में ऐसा होना चाहिए 4th ईयर के पॉइंट में क्योंकि एट दैट पॉइंट आई थिंक सबके मेंटल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
और वो टुवर्ड्स होते हैं कि टू गेट सम इंटर्नशिप, टू बैक सम कंपनी एंड डू समथिंग फॉर देमसेल्फ। ओके, तो वो चीज़ मेरे अंदर, वो चीज़ बहुत हेल्प करी है मेरे को। अच्छा। एंड फ्रॉम देयर आई एक्चुअली स्टार्टेड माय जर्नी और विद आपका आपका रोल क्या था उधर उस कंपनी में? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर था और यस, आपसे यस। किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे थे इंटरव्यू में? तो मेरे से डीएसए? इंटर्नशिप के टाइम में मेरा 2 ही राउंड हुआ था। तो फर्स्ट राउंड इट वाज़ डीएसए, प्रॉपर डीएसए। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन बट इट दैट्स वाज़ ओके, मोर रिलेटेड टू एरे। ओके, कुछ एरे से रिलेटेड था। एंड बाय लकीली वो किया हुआ था मेरे तरफ से। मैंने लीड कोड में प्रैक्टिस कर रखा था। ओके, तो आई मैनेज्ड टू सॉल्व ऑल द टेस्ट केसेस एंड व्हाटएवर द क्रॉस क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करी है आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद डीएसए के बाद एक एचआर इंटरव्यू राउंड हुआ था, व्हिच वाज़ नॉट वेरी कॉमन राउंड। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में बातें हुई हैं मैनेजमेंट एंड थिंग्स को लेके। तो हुँ, हमारे में सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोग टेक्निकल तो क्लियर कर जा रहे थे, लेकिन लेकिन एचआर एचआर हुँ, आके रिजेक्ट हो जा रहे थे। एंड ओके, out of like I remember the stats, out of 40 only 4 people got selected ओके, ओके, from one batch. So it was literally difficult to clear the HR round क्योंकि चलो। हुँ, हुँ। मतलब सबको बेसिकली लगता है कि टेक्निकली कर लेने से मतलब सब कुछ हो जाता निकल है बट जाता है। हाँ, जनरली बहुत लोग का ऐसा होता है टेक्निकल निकाल लो एचआर हो जाएगा बट हाँ, दैट्स नॉट द केस विद यू राइट? एग्ज़ैक्टली। एक बात और बताओ तुमने जब टाटा डिजिटल जॉइन कर लिया तो आपको थोड़ा ऐसा लगा कि यार ओह शिट और भी बड़ी कंपनीज़ जॉइन कर राइट, सकता था मैं और मैंने यस, ये छोटा ऑफर ले लिया और एक ही ऑफर यस, मिलता है शायद यस, कैंपस से। यस, यस, ओके, यस। ओके, ओके, ओके। चलो ठीक है। तो फिर आपको ऐसा लगा। तो फिर चलो आपने वो जॉइन कर ली कंपनी उसके बाद का बताइए मुझे कि आपने फिर कब लगा आपको कि यार नहीं अब ये छोड़ना चाहिए मुझे अब और इससे ऊपर जाना है? क्योंकि जनरली लोग जॉब में जाके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। राइट, तो मैं कंफर्टेबल तो हो हुँ, ही गया था, आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली मैं हाँ। उसमें काम कर रहा हूँ, मेरी वहाँ पहचान बन रही है, हाँ मेरे जी। डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं मैनेजमेंट के साथ उनके साथ क्योंकि इट्स अ मोर लाइक अ स्टार्टअप, टाटा डिजिटल इज़ अ फॉर्merly टाटा न्यू, हुँ, इट्स हुँ। मोर लाइक अ स्टार्टअप थिंग। तो वो स्टार्टअप एनवायरनमेंट ही अलग होता है, जहाँ फास्ट पेस होता है एंड यू आर गिवन न्यू फीचर्स और अ न्यू प्रोडक्ट टू मेक बाय योरसेल्फ। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो उस मोमेंट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो फायर मेरे अंदर हमेशा थी क्योंकि वो सेटबैक जो मैंने आपको बताया कि मेरे को ऐसा हमेशा फ़ील हुआ है कि आई कैन स्टिल क्रैक एनी वन ऑफ माय ड्रीम कंपनी आई ओके। वांट। और वो वाली चीज़ हमेशा से मन में अच्छा आपको क्यूरियोसिटी हमेशा जगी से थी। मन में था कि लाइक आई एम एग्ज़ैक्टली। मेड फॉर समथिंग बिगर और मैं कर सकता हूँ वो, बट इट्स हाँ। जस्ट दैट कि राइट अपॉर्च्युनिटीज़ मिले तो मैं करूँगा। राइट, राइट। ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं टाटा हाँ। न्यू इसलिए छोड़ा कि मेरे को मतलब छोड़ना था या मेरे को टाटा न्यू में सैटिस्फैक्शन नहीं था। आई वाज़ सैटिस्फाइड देयर, आई बट यू वाज़ वांटेड टू कंफर्टेबल। डू मोर। Yeah, I wanted to do for myself more and I wanted to get a bigger opportunity. ओके। And हुँ, हुँ। हुआ ये भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है। आपके नमस्ते रिएक्ट तब तक मैं फॉलो करना शुरू कर दिया था। अच्छा। एंड नमस्ते रिएक्ट जब फॉलो किया तो आई आई लर्न मेनी थिंग्स। मतलब मेरे को समझ में आया कि एक सेकंड तुम्हें बहुत कुछ सीखना बचा है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें आता है दैट्स योर बिगेस्ट सेटबैक अपने लाइफ का। उस टाइम क्यूरियोसिटी अपना दिखाना होगा, राइट? So the same thing I did. So what I do, I saw your personal branding video actually. हाँ, वहाँ पर एक ब्रांडिंग बोनस बोनस वीडियो है हमारे उसमें हाँ, एग्ज़ैक्टली पर्सनल दैट बोनस वीडियो इज़ एक्चुअली अ बोनस। वो मेरे लाइफ का बोनस है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैंने हज़ार एप्लीकेशंस अप्लाई किए, मैंने हज़ार जगह दिए, अपना पूरा ट्राई दिया मतलब गूगल में भी मैंने रेफरल्स डाले कि आप प्लीज़ मेरे को रेफर कर दो, नेटवर्किंग के थ्रू एंड ऑल दैट। बट नथिंग वाज़ वर्किंग आउट। एक्चुअली कुछ इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे एंड वो एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है जो मुझे लगता है आज भी बहुत कॉमन है हर जगह। तो मैं यही बोलूँगा कि व्हाई डोंट पीपल ट्राई योर नमस्ते रिएक्ट बोनस फर्स्ट देन गो फॉर नमस्ते रिएक्ट बिकॉज़ न जो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपने बात करी उसके बाद मैंने लिंक्डइन में जाके बस वही किया है, पर्सनल ब्रांडिंग करा है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, आपको टैग करा है बिकॉज़ आई आई हैव नेटवर्क विथ यू। मैंने आपका कोर्स किया, तो मैंने आपसे नेटवर्क किया, आपके नेटवर्क्स ने उसको पहचाना एंड थ्रू वहाँ से मेरे को गोल्डमैन सैक्स का मेरे को एक मैसेज आया एचआर से कि we want to hire you. We have seen your skills. We have seen what are you doing, and we really want to know you more. And अच्छा मैं बहुत अच्छा एक एक बात और बताइए कि आपको जो गोल्डमैन सैक्स का ऑफर मतलब ऑफर नहीं इंटरव्यू कॉल आया था वो कॉल आया कहाँ से था, आया था? लिंक्डइन से आया था? लिंक्डइन से आया ओके था। एंड दैट आप वाज़ ओनली बिकॉज़ कि आप
लिंक्डइन पे और ज़्यादा कंटेंट डाल रहे थे या फिर आप थोड़ी एग्ज़ैक्टली। मतलब जो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग वीडियो में बताया है वही चीज़ें हाँ, अप्लाई कर रहे थे सेम आप उधर? एग्ज़ैक्टली मैंने सेम वही अप्लाई किया जो आपने ओके। बताया है, हाउ हाँ, टू डू इट। नेटवर्क किया मैंने, लोगों से थोड़ी-थोड़ी बात की है ताकि मैं एक नोन पर्सन बन सकूँ। जस्ट हाँ, हाँ। हाय हेलो यस सर। टाइप्स मैंने रखा हाँ, और प्लस मैंने हेल्प करना नहीं छोड़ा। मैंने अपने जूनियर्स की भी हेल्प करी, जितना मुझे आता था मैंने उनको बताया एंड आई यूज्ड टू पोस्ट मेनी थिंग्स इवन व्हेन आई पोस्टेड ऑफ वन ऑफ द वीडियोज़ जिससे आपसे मैंने सीखा था स्विगी वाला हाँ, हाँ, एपीआई। I posted it so detailed way, आपने भी उसमें कमेंट और लाइक किया था एंड यू नो हाँ। इट रीचेड आउट टू लाख ऑफ पीपल, ओह लाख माय व्यूज गॉड! हाँ, हाँ। पोस्ट में। एक्चुअली तो पता है ये बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं बट सोशल मीडिया को अगर आप सोशल मीडिया की तरह यूज़ मत करो, बट राइट, अगर आप उसपे पर्सनल ब्रांड बनाओ अपना या फिर एक अच्छा कंटेंट पुट आउट करो, तो आप एक अपने आस-पास वैसी एक ऑडियंस को गैदर कर लेते हो जो कि करेक्ट, आपसे रिलेट करती है, आपके साथ की है और जब कोई करेक्ट, अब आप ये सोचो 2 कैंडिडेट हैं। पहला कैंडिडेट ये है जिसको थोड़ा बहुत आता है, राइट? बट पता ही नहीं है, ऑनलाइन थोड़ी ना पता है कि उसने कितना ज़्यादा काम करा हुआ है, ठीक है? आता है उसको। बट सेकंड कैंडिडेट वो है जिसको थोड़ा कम आता है, लेकिन वो बताता भी है अपने बारे में कि यार मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। तो इंप्रेशन एक बहुत अच्छा जाता है एंड दैट इंप्रेशन काउंट्स। जब एक एचआर आपका प्रोफाइल देखेगा, देखेगा कि यार एक ये है और एक ये है। बट एचआर को दिखेगा यार ये ज़्यादा एफर्ट मारता है, ये मेहनत करता है। भले ही उसके काम में कैसा भी हो, ऑब्वियसली काम में भी अच्छा होना ही चाहिए वरना इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगा। बट एक ब्रांडिंग वाली चीज़ से ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ जाती है कि आप बेसिकली दिखने लग जाते हो। भीड़ में आप थोड़ा पहचाने जाओगे। तो दैट्स व्हाट गॉट यू इंटरव्यू कॉल फ्रॉम गोल्डमैन, इज़ इट? यस, तो यस, एचआर ने आपको लिंक्डइन पे रीच आउट किया था? यस, यस। तो मैं बहुत डाइसी था एंड हाँ, हाँ। इट्स अ वेरी फनी थिंग। मैंने अपने अच्छा, मॉम को बताओ? कॉल किया और मैंने डायरेक्टली बोला कि मॉम मेरे को आया तो है गोल्डमैन सैक्स से, बट कॉल। आप उम्मीद हाँ, कॉल आया है बट आप उम्मीद मत करना मेरे से कि अगर हो सकता है बिकॉज़ यू नो सबको मैं भी इस पे विश्वास करता हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप से थ्रू फुल टाइम ब्रैक करते हो, दैट इज़ लिटिल ईज़ी ईज़ी, देन गेटिंग इनटू ऑफलाइन। डायरेक्टली आफ्टर लेटरल हायरिंग। तो वो ऐसा हुआ था कि फिर मेरे को उन्होंने रीच आउट किया, मैंने तुरंत फॉर्म भर के दिया एंड यू नो उन्होंने इंस्टेंटली कॉल किया हाँ। एंड देन दे डिड अ फोन कॉल राउंड एक्चुअली वेयर दे आस्क्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, व्हाट आई एम डूइंग एंड इफ आई एम ओके टू रिलोकेट एंड ऑल दैट एचआर क्वेश्चंस। वो होने के बाद उसके बाद मेरे को फर्स्ट राउंड के लिए शेड्यूल किया गया। सो एक्चुअली मेरे राउंड्स हुए थे अच्छा 4 मुझे आप हाँ, ब्रीफ में बताइए पहले तो राउंड्स बता दीजिए 4 राउंड हुए थे आपके? नहीं क्या-क्या राउंड 5 राउंड 5, 5 राउंड्स 5 हुए थे क्या-क्या राउंड हुए थे? इंक्लूडिंग मैनेजरियल राउंड। हाँ, क्या-क्या राउंड हुए थे आप बताएँगे? एक एक डीएसए कोडर पैड डीएसए, राउंड होता है, वो हुआ है। उसके सेकंड बाद एक टेक्निकल राउंड टेक्निकल, जिसमें प्रॉपर आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर ठीक पूरा है। इन डेप्थ हुआ गया है। थर्ड, थर्ड इज़ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। क्या इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो? क्या बेटर है? ओके, वो उसके ऊपर हुआ है। फोर्थ इज़ सिस्टम डिज़ाइन राउंड ओके, जो प्रॉपर फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन पे बेसिस था ओके, एंड फिफ्थ इज़ मैनेजरियल राउंड ओके, ओके, ठीक है। एंड द राउंड राइट। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइए आपका जो रोल है वो एक्चुअली क्या है अभी वहाँ पर? सो मैं एनालिस्ट हूँ एंड एनालिस्ट गोल्डमैन सैक का एक पोजीशन है वेयर फॉर एनीवन हु इज जस्ट जॉइनिंग एज एन एनालिस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर वो टेक्निकल हाँ, बस इंजीनियरिंग रूम है। बोलते उसको एनालिस्ट है बट वो एनालिस्ट बोलते हैं। कोडिंग डेवलपमेंट का काम राइट, है ना? राइट, काइंड ऑफ राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो आप। एग्जैक्ट एग्जैक्टली। ठीक है। लेवल 1 और आप ये फ्रंट एंड डोमेन में हो या फिर या मिक्स ऑफ अभी इट? मैं अभी मैं फ्रंट एंड फ्रंट एंड डोमेन, डोमेन में ओके। हूँ। सो वंस आई मास्टर दिस फ्रंट एंड डोमेन हाँ, इन हाँ, गोल्डमैन सैक फॉर सम इयर्स, फिर मैं बैक एंड एंड फुल स्टैक सब मेरा कर फुल सकते हैं। स्टैक जाने का एम है। तो ओके, मैं बेसिकली बैक एंड को भी फिर धीरे-धीरे फॉलो करना शुरू कर दूँगा। ओके, ठीक है। चलो तो ये मुझे आपने बता दिया बहुत अच्छी बात है बट मुझे अब एक-एक करके थोड़ा-सा राउंड्स के बारे में बताइए कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में पहले राउंड में क्या हुआ था? कैसा रहा थोड़ा? क्या क्वेश्चन पूछे थे? राइट, राइट। सो बेसिकली कोडर पैड राउंड वाज़ प्रॉपर डीएसए राउंड एंड ओके। मेरे लिए हुँ, एक हुँ। बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे ये भी है कि मुझे जावास्क्रिप्ट में डीएसए करना नहीं आता था। बिकॉज़ लोग यूज्ड टू थे सी प्लस प्लस और जावा में और जावास्क्रिप्ट का डीएसए मतलब इट वाज़ आई एम नॉट सेइंग इट्स टफ बट आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं, घबराते हो करने से पहले क्योंकि आप मोस्टली डेवलपमेंट में यूज़ किए होते हो या फिर बेसिक नॉलेज होती है आपको ज जो मैंने आई थिंक नमस्ते जैसे ही जो पहले सीखा। पहले तो आप थोड़ा-सा है ना लोगों के लिए मतलब जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये क्लियर कर दीजिए कि क्या हम जावास्क्रिप्ट में डीएसए कर सकते हैं? ये यस, इतने लोग मेरे बिल्कुल से कर रोज़ सकते पूछते हैं। हैं।
यस, तो फिर बिल्कुल कर सकते हैं एंड लोग एवरीबॉडी हु इज वाचिंग द वीडियो लिसन टू अभय, राइट? ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जावास्क्रिप्ट में आप पक्का डीएसए कर सकते हो, ये मैं सबको बता बता के थक गया हूँ, बट देन ओके। इनफैक्ट JavaScript is an important language, guys. Let me tell you, C++ जावा ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप JavaScript कर सके, तो प्लीज उसको भी आप प्रेफरेंस दो, क्योंकि कंपनीज दे रही हैं। एग्जैक्टली। मैंने देखा अदर इंटरव्यूज में भी कंपनीज प्रेफरेंस दे रही हैं। तो वो वाली चीज थोड़ी मेरे लिए सेटबैक थी उस मोमेंट। मेरे को ओके। नहीं पता था मैं कैसे करूँ। तो बट फाइनली सिंस आई वाज फॉलोइंग मेनी यूट्यूबर्स अदर्स एज वेल, जो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में डीएसए कराते थे, तो पीयूष अग्रवाल करके हैं, मैं हाँ हाँ। उनका एक्चुअली मैंने देखा है प्रॉपर्ली, जो भी बेसिक जितना था। एंड लेट मी टेल यू, उनका वो देखने से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा, मेरे को आता तो है, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन डू, दैट इज फाइन। वो लिखने का तरीका कैसे उसको प्रेजेंट करना जानना है, चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट तो इट वाज 1 आवर राउंड कोडर पैड में, तो उसमें 2 क्वेश्चंस में से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आई रिमेम्बर्ड इट वाज मोर ऑफ एन एरे क्वेश्चंस था, जिसमें कुछ सेकंड लार्जेस्ट बताना था। आई ओके, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ इन। हाँ, ठीक। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था उसी मोमेंट, उसी से रिलेटेड, बट इट वाज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। तो उससे क्या हुआ था कि मैंने फिर एकदम प्रॉपर ब्रूट फोर्स से शुरू किया था, फिर मैंने ऑप्टिमाइज़ करा उसको। फिर वी एक्चुअली डिस्कस मोर, क्योंकि होता क्या है, लोग डिस्कस नहीं करते। अगर आपको मान लो क्वेश्चन भी आता है, यहाँ मैं बस एक ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको मालूम है आता है, तो आपको बताना नहीं है कि आता है, यू जस्ट नीड टू डिस्कस दैट। एग्जैक्टली। सो ये बेसिकली वाली ये होता ही है। हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएसए का, तो एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन array। फिर राइट। जैसे ही आप बना लोगे उसको, देन इमीडिएटली इंटरव्यू विल आस्क यू कि थर्ड लार्जेस्ट बताओ अभी। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। एक और ऐसा होता है। वो एक्चुअली आप पता है, मुझे ऐसे फ़ील होता था कि जैसे बहुत टाइम ऐसे बोला जाता था, प्लेगरिज़्म है, हाँ हाँ। या लोग देख सकते हैं एंड एवरीथिंग, बट आई फ़ील कि जब वो डिस्कशंस होती है ना, उस मोमेंट ही आपको पता चलेगा अगर आपने किया हुआ है काम या आपने सही में मेहनत करा है, तो वो दिखेगा उस मोमेंट, बिकॉज़ दैट क्वेश्चन्स आर टू क्रिटिकल एंड टू सब्जेक्टिव, क्योंकि वो क्वेश्चंस गलत सही नहीं है, बट वो आपका देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या है। तो देखो, दैट इज़ डीएसए राउंड में एज एन इंटरव्यूअर मैं बताता हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यू लिए। तो पहली बात तो पता है, आप फेक करते हो तुरंत किसी को पता चल जाता है इंटरव्यूअर को। और आपसे जब क्रॉस क्वेश्चन होता है ना, डीएसए इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट्स मोर अबाउट एग्ज़ैक्टली, एक्सप्लेनिंग योर थॉट प्रोसेस। आपको एग्ज़ैक्टली, हायर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने डीएसए का प्रॉब्लम क्रैक कर दिया। आपको हायर या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपका थॉट प्रोसेस देख रहे राइट। हैं। दैट इज द मेन एम, तो ये बच्चे सो समझते थैंक्स टू नहीं। यू एज़ वेल ऑन दिस ओके। पॉइंट, बिकॉज़ ये आपसे हाँ। मैंने सीखा है कि व्हाटएवर यू से, रीड आउट लाउड या एग्जैक्टली। इट लाउड, बिकॉज़ या। अंटिल यू से इट लाउड वो नहीं समझेगा कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज़ क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है। अप्रोच मैनेज करना इज़ बिग थिंग, बिकॉज़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आप खाली सॉल्व करने नहीं जा रहे हो। तो वो वाली चीज़ थी। सेकंड क्वेश्चन वाज़ वेरी ट्रिकी, आई कैन से इट वाज़ लीड कोड हार्ड, क्योंकि इट्स प्रॉपर्ली स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट जावा। ओनली। और वो ऐसे था कि मतलब आई रिमेंबर्ड अ पार्ट ऑफ इट कि वो ऑब्जेक्ट था, एंड ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर थे। तो कुछ की वैल्यू में मुझे सॉर्ट करके कुछ करना था। आई डोंट ओके। रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। वो उसके बाद मेरे को एक फाइनल रिज़ल्ट देना था। कुछ एवरेज करके कुछ था। आई आई रिमेंबर एवरेज ऑफ समथिंग हैज़ टू बी समझ दैट। गया, उसमें बेसिकली तुमको मैप फिल्टर रिड्यूस की चेनिंग या ऐसे कुछ लगा के उसको एग्ज़ैक्टली, राइट, राइट, राइट। वो ये देखना चाहते थे कि आप वो लगा के जावास्क्रिप्ट प्लस आप सॉर्टिंग एल इवन उन्होंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी पूछा था। पूछ लिया था। हाँ। हाँ, उन्होंने जस्ट लिखवाया नहीं था, बिकॉज़ टाइम क्रंच था, बट दे आस्क्ड द सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, कौन-सा बेस्ट है, नहीं है, एंड हाउ विल यू अप्रोच टुवर्ड्स सॉर्टिंग देम। तो द माय से हियर इज़ कि नेवर फियर। पहले मुझे भी बहुत डर लगा था डीएसए राउंड जाते, बट व्हेन यू स्टार्ट सेइंग, डूइंग, तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि आपने करा है प्रैक्टिस, वो इवेंचुअली वो उस राउंड पे उस मोमेंट आ जाएगा। तो एग्जैक्ट। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। यू आर राइट। वेरी राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में होते हैं कैंडिडेट्स, तो बहुत बार पैनिक कर देते हैं, बट उस समय पे आप पैनिक मत करो। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली दिमाग में आता है कि यार मैं सही नहीं बता रहा हूँ, मैंने गलत बता दिया। बट वो नहीं छोड़ के, वो सब छोड़ के, अगर आप उस चीज पे फोकस करोगे कि यार जस्ट लेट योर सेल्फ आउट, जो बोलना है बोल दो, अच्छे से बोल दो, कम्युनिकेट कर दो, आपका थॉट प्रोसेस बता दो, एंड देन लीव इट रेस्ट टू द इंटरव्यू।
हाँ, तो इसमें मैंने मिस्टेक्स बहुत किए थे। लेट मी टेल यू, मैंने एक बार में मैं सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचा हूँ। अच्छा। अगर मेरे को ऐसे लगा कि मैं नोन है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है या देखा है, स्टिल आई मेड सिली मिस्टेक्स। बट यू नो, वो इंटरव्यूअर पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ही वाज़ वेरी हेल्पफुल ओके। एंड ही एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि अच्छा, मैं अगर ये टेस्ट केस दे रहा हूँ तो ये फेल हो रहा है। तो देन इट लेड मी टू थिंक, बट यू नीड टू थिंक वेरी फास्ट। यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू बी क्विक, यू फर्स्ट। कैनॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज़ वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेगा फिर। बट या, सो मूविंग ऑन, उसके बाद सेकंड राउंड सेकंड राउंड। का कॉल आया। हाँ, बट इट दिस वाज़ अ वेरी लॉन्गर प्रोसेस एक्चुअली। मुझे 1 वीक बाद सेकंड राउंड का कॉल आया। अच्छा, आप मुझे सो ये बताइए, टोटल टोटल आपको टाइम कितना लगा पूरे 5 इंटरव्यूज़ में? 1 येस, तो महीना? कोडर राउंड, कोडर पैड से लेके मैनेजरियल तक मेरा 1 मंथ तक चला है। हाँ, 1 ऑलमोस्ट अ मंथ। ओके। या ऑलमोस्ट अ मंथ चला है। एंड मेरा कोडर पैड में, लेट मी टेल यू, जावास्क्रिप्ट का जो भी डीएसए राउंड था, उसमें मेरा 5 आउट ऑफ 5 आया था। तो दैट वाज़ अ ओह! ब्रेक फॉर नाइस। मी, क्योंकि ओके। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसकी वजह से एचआर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे लुकिंग एट माय रिजल्ट, एंड दे वांटेड टू डू इन अ सिंगल डे राउंड। तो वहाँ पे होता है इन अ सिंगल डे ऑल द 5 राउंड्स आर बीन हुँ, हुँ, डन, हुँ, ठीक हुँ। है? तो बट वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाया था, बिकॉज़ इट वाज़ माय टीम वाज़ मोर ऑफ फ्रॉम द लंदन बेस, तो ओके, इसीलिए वो एक्सटेंड हो गई 1 मंथ के लिए। ओके, एनीवेज़, moving to second round, तो it was JavaScript, pure JavaScript. ओके, React वगैरह was that thing that they asked a little bit, क्योंकि वो मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, एंड स्विगी वन was the best thing that जो मैंने क्रैक करा है उनको, ठीक है? बट या, प्योरली JavaScript, एंड आई मस्ट से मैंने चिराग गोयल को यूट्यूब में फॉलो करा है। जब आपका मैंने देखा, आप चिराग गोयल नमस्ते फ्रंट एंड डिज़ाइन निकाल रहे हो। दो मैंने ऑप्ट नहीं करा उस कोर्स को, बट मैंने चिराग गोयल के फ्रंट एंड वीडियोस देखे थे। आई विल सजेस्ट गाइस, अगर आप 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो और अगर आप बड़ी कंपनीज में टारगेट कर रहे हो, please go and look into system design. Please, please, it's very important. Don't miss that thing. And even I will suggest go for Namaste front end design, क्योंकि that will cover everything. मेरे को ऐसे फील होता है। हुँ, हुँ। मैंने देखा तो नहीं है, बट आई कैन अश्योर यू ऑन दिस, बिकॉज वो काफी हेल्प की है मेरे सेकेंड राउंड पे। जो दे जो फ्री में आपको जो यूट्यूब पे है ना सारा कंटेंट, हाँ, व्हाट वी डिड इज़ नमस्ते फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन में मी एंड चिराग, वी बोथ यस, केम टुगेदर। हमने एक बहुत वास्ट करिकुलम बनाया है। राइट, उस राइट, पूरे कोर्स में आई थिंक 100 से भी ऊपर वीडियोज़ हैं और हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में। तो उससे आप पहले बेसिक सीखोगे, फंडामेंटल सीखोगे, फिर एलएलडी और एचएलडी पे काफ़ी फोकस किया हमने। तो करेक्ट, करेक्ट, बहुत ओवरऑल है, बट ठीक है। यस। एनीवेज़, तो हाँ, आपसे मुझे बट कॉन्सेप्ट आपका ये पूछा गया। सिस्टम डिज़ाइन राउंड तो नहीं था, तो आपसे सिस्टम हाँ, डिज़ाइन कैसे कहाँ पूछा? सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम डिजाइन राउंड प्रॉपर नहीं था, तो इट वाज मोर लाइक अ कॉन्सेप्चुअल वे से पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल में से इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में पूछा गया है। ओके, वेरी अगर आप फ्लिपकार्ट खोलते हो एंड इनफाइनाइट स्क्रॉल वाला चीज, तो यू रिमेंबर यू आल्सो सेड इन योर नमस्ते रिएक्ट हाँ, कोर्स, हाँ, वो इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में आपने डिस्कस करा था। करा था। मेरे को और ज़्यादा डिटेल में जानना था, तो दैट लेड मी टू चिराग गोयल एक्चुअली, कि उन्होंने वो बारे में डिस्कस कर रखा है अपने यूट्यूब वीडियो पे। तो हुँ, हुँ, वहाँ मैंने उस चीज़ को समझा, फिर मैंने वो सारी चीज़ उनको एक्सप्लेन करी है हुँ, कि किस तरीके से आप इनफाइनाइट स्क्रॉल कर सकते हो। सेकेंडली, अबाउट द मिलियंस ऑफ डेटा दैट यू आर हैंडलिंग, एपीआई कॉल्स, अब वो कैसे हैंडल कर सकते हो, डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, एंड ये सारी चीज़ें जो नमस्ते जावास्क्रिप्ट में आपने कवर कर रखी हैं, एग्जैक्टली वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो जो मैं यही बोलूँगा, जो जिसको फ्रंट एंड रिलेटेड इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अगर पूछ रहे हैं, ब्लाइंडली गो विथ नमस्ते जावास्क्रिप्ट एंड आपके सारे पुराने प्लेलिस्ट भी, बिकॉज़ मोस्टली क्वेश्चंस आपने कवर कर रखे हैं। तो इफ आई टेल यू, मेरे सेकंड राउंड में 10 क्वेश्चंस पूछे गए, तो 6 टू 7 क्वेश्चंस वेयर अराउंड नमस्ते जावास्क्रिप्ट एंड योर प्लेलिस्ट। हुँ। तो बिग थैंक्स टू यू फॉर द कंटेंट दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ अस, और उससे मैंने काफ़ी इन डेप्थ बातें की हैं उनके साथ। इवन उन्होंने एक डीएसए क्वेश्चन भी थ्रो किया मेरे पे वापस, तो वो भी मैंने मैनेज कर लिया टू सॉल्व इट। एक चीज़ है कि आप एक जगह मैंने स्टक किया था, एंड इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। सो बेसिकली मेरे को फॉर ईच और मैप में मैं ओके था, बट मेरे को फॉर ईच वगैरह ओके, यूज़ करना फॉर ईच नहीं आता। डिफिकल्ट होता था। बस मुझे फॉर ऐसे ईच इसीलिए नहीं आता है शायद, मैंने वीडियो नहीं कॉल बैक, बनाया। हाँ, हो बस। सकता है। तो द पॉइंट इज़ कि ये फॉर ईच वगैरह से थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि आप उससे डीएसए का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करो, आप फॉर लूप पे ज़्यादा रिलाई करोगे। तो माय आंसर वाज़ करेक्ट, बट समवेयर दे वर नॉट
सैटिस्फाइड बिकॉज़ वो पैनल बैठी थी। तो वो एक पैनल में एक जन आपसे पूछ रहे हैं एंड एक जन सडनली इज़ आस्किंग सम अदर क्वेश्चन, तो यू नीड टू आंसर बोथ ऑफ देम। तो वो वाली चीज़ होते-होते मेरे को ये समझ आया कि नो, यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ द न्यू थिंग्स दैट आर एक्चुअली बीन यूज्ड इन रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वही काम आएगा। आप फॉर लूप जाके नहीं लिख रहे हो, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। इट इज़ एन ईज़ी वे टू राइट इन डेवलपमेंट, यू विल प्रेफर दैट। ओके। तो इस तरीके से मैंने वो राउंड भी क्लियर किया, सेकंड राउंड, एंड देन आई शिफ्टेड टू थर्ड राउंड व्हिच वाज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन। नो इट वाज़ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। या हाँ, हाँ। अब इस राउंड के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, ऑनेस्टली व्हाट बताऊँगा व्हाट इज़ कि आस्क्ड इन दिस राउंड? ये तो अजीब मतलब ये और क्योंकि कंपनीज़ में बहुत नहीं होता है शायद। या दिस इज़ वेरी वियर्ड राउंड एक्चुअली, ये होता नहीं है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस मैंने कहीं सुना भी नहीं है। तो इस राउंड में इट वाज़ प्योरली प्योरली ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स, प्योरली प्योरली व्हाट यू डिड ओके, इन योर होल डीबगिंग नहीं years। तो वो वर्बल राउंड होता है या कोडिंग करना होता है उसमें? बोथ बोथ ओके, तो वर्बल इज मोस्ट बिकॉज वर्बल में वो आपको एज अ डेवलपर समझ रहे कि आप डेवलपर कितने अच्छे हो। ओके। इसमें ये राउंड इट्स मोर लाइक आई थिंक गोल्डमैन सैक्स फेवरेट राउंड में भी, क्योंकि ये राउंड में आपको पूरा इन डेप्थ तक टेस्टिंग, बिकॉज यू नो वी मिस टेस्टिंग, और आपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखवाए हुए और वो हाँ, करा है, नमस्ते तो रिएक्ट मेरे को में। तो नहीं पता था, राइट, एंड आई स्टक देयर। मेरा वहाँ बहुत बड़ा वो एक सेटबैक था, क्योंकि वो टेस्टिंग के पीछे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दिए हैं कि मेरे को उस मोमेंट लगा कि ओके, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, आई कैन नॉट मिस दिस एंड विद डेवलप। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से मुझे जो समझ में आ रहा है, इट ऑल कम्स अपॉन देखो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कोड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, मॉड्यूलर राइट, होना चाहिए आपका कोड, है ना? राइट, राइट, रीयूजेबल होना चाहिए, रीडेबल होना राइट, चाहिए, टेस्ट केसेस लिखे होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सारी राइट, चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो या बेसिकली दे वुड बी ट्राइंग टू आंसर आस्किंग यू क्वेश्चन्स अबाउट द सेम, राइट? अराउंड actually they are relating हुँ, all of these pointers with my experience, एक्सपीरियंस। and they want me to prove it, how did I just implemented all of this। ओके। तो वो मेरे को मतलब एक थिंक में डाल दिया कि अच्छा ये इस तरीके से सोचना पड़ेगा या इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं की होगी, तो हाँ, आप आपने आंसर अगर नहीं कर अच्छे बड़े प्रोजेक्ट क्योंकि बनाए हैं, देन यू कैन आंसर हाँ, दोज़ क्वेश्चन्स। अगर आपने अच्छे एग्ज़ैक्टली, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, तो यू विल हाँ। फेस टफ डिफिकल्टी। या राइट, यू कैन नॉट फेस दोस क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ थे और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था टू हैंडल देम, बिकॉज अगेन गोल्डमैन सैक्स फॉलो पैनल वाइज इंटरव्यू ओके। राउंड्स, तो उसमें से हो रहा था। तो वो वाली चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही है। वो राउंड के बाद तो मैं एकदम ही कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, बिकॉज इट वाज टू सब्जेक्टिव, टू गुड। इन डेप्थ, 1 आवर का राउंड था, एंड somehow I managed, because one thing I will suggest to everyone, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, don't stop saying, or don't just be silent, be open about whatever you know and be clear। अगर आप क्लियर हो कि हाँ मुझे इतना ही पता है या फिर मैं इतना ही जानता हूँ, बट आई एम ओपन टू लर्न मोर, दैट ऑल्सो शोज यू नो समटाइम्स ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी पे भी बहुत जन रिलाई करते हैं। तो इट्स नेवर लाइक कि आपको हमेशा राइट आंसर ही करना है। हुँ, आप ऑनेस्ट रहोगे अपने ओपिनियंस में, आप ऑनेस्ट रहोगे आपने क्या किया है, तो यू नो सामने वाला भी उस चीज़ को समझ के एग्री करेगा, ना कि एब्सोल्युटली राइट। हुँ, हुँ। रिजेक्ट कर देगा। राइट। नहीं, नहीं, सो ऐसा नहीं होता है। आप देखो इंटरव्यू में पैनिक करना इज़ ओके एंड ऑल द इंटरव्यूअर्स नो अबाउट इट। उनको भी पता हाँ, होता है कि कोई बात नहीं है, कैंडिडेट है, पैनिक करता है एंड नॉट ऑलवेज़ 100% राइट। पर आप राइट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट। चलो हम अब जल्दी से नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में हाँ, बताइए आपको क्या सिस्टम क्वेश्चन्स पूछे थे, किस टाइप का था? तो सिस्टम डिज़ाइन में मेरे से पहले टाटा न्यू के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। मेरे से ये हुँ, हुँ। पूछा गया है कि आपने क्या डिफरेंट करा है? क्या पास्ट डेटा प्रोजेक्ट। या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं टाटा न्यू में, स्पेसिफिकली टाटा न्यू में, एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट डिफरेंटली? ओके। सो मेरे से एक तरीके से ही पूछा गया था कि अगर आप कोई फीचर पे काम कर रहे हो हुँ, और हुँ। वो फीचर में पर्टिकुलरली कुछ एक चेंज आया है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो? दिस वाज़ मोर लाइक आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आप वो नाइस। चीज़ को अदर टीम के साथ कैसे इंटरैक्ट करो, ये वो। तो इट्स अ ओवरऑल कन्वर्सेशन अगेन। उसके बाद ये फर्स्ट 30 मिनट्स में ये प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, हुँ, एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स इट वाज प्रॉपर सिस्टम डिजाइन राउंड, वेयर मेरे को व्हाट्सएप डिजाइन करने बोला ओके, गया था, व्हाट्सऐप। तो अब मैसेज इसमें मुझे प्लेटफॉर्म। थोड़ा-सा बताइए, सिस्टम डिज़ाइन राउंड कैन गो इन वेरी वेग डायरेक्शंस। तो आप करेक्ट। मुझे बताइए व्हाट्सऐप में आपसे क्या-क्या पूछा था? कौन से फीचर्स या कोई स्पेसिफिक चीज़ें बनाने को बोली थी? नहीं, उन्होंने पूरा होल व्हाट्सएप डिजाइन करने ओके, बोला। उन्होंने ठीक है। बोला आप अपने तरफ से स्टार्ट करो, लाइक ओके, व्हाटएवर यू फील लाइक, बिकॉज़
आई वाज़ ऑल्सो नॉट श्योर बिकॉज़ सिस्टम डिज़ाइन मैंने उतना कर नहीं रखा था, बट आई नो द बेसिक्स। एज़ आई सेड मैंने चिराग गोयल का पढ़ के गया था। तो मेरे को बेसिक्स पता था कि कैसे अप्रोच करना है टू द प्रॉब्लम। तो नाउ द पॉइंट वाज़ हियर आई स्टार्टेड विथ रिक्वायरमेंट्स कि क्या रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट है, गैदरिंग करी आपने फिर उसको। रिक्वायरमेंट हाँ, हम्म, क्या-क्या बेसिक चीज़ें नीड है, आप उस पर्टिकुलर इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन आप वो कैसे करोगे या फिर आप जो एपीआई कॉल्स कर रहे हो, तो आप कौन-सा टाइप का यूज़ करोगे? आई सेड वेब सॉकेट, देन दे आस्क्ड क्वेश्चन कि आप वेब सॉकेट ही क्यों करोगे? कैन वी गो विथ सम अदर थिंग्स एल्स? एंड this it went on, questions went on and optimization तक गया है कि आप इस तरीके से कैसे उस चीज को परफॉर्म करोगे। सो आई मैनेज टू क्रैक दिस बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे अपने। मेरे को पता था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपसे सुन रखा था नमस्ते रिएक्ट में, क्योंकि रिएक्ट में आपने बहुत इन डेप्थ इस बारे में भी डिस्कस कर रखा है कि हाउ वी कैन डू एन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर मैंने पार्सल ही क्यों यूज किया था, मैं से हाँ। ये भी पूछा गया। एंड दैट वाज द केक वॉक फॉर मी, क्योंकि ऐसा था कि थैंक्स अक्षय सैनी, मतलब अंदर-अंदर वही चल रहा था कि थैंक्स अक्षय फॉर लेटिंग एक्चुअली अस। जब मैंने नमस्ते रिएक्ट में पढ़ाया भी था तो मेरा यही एम था कि देयर आर सो मेनी वेज टू डू थिंग्स। मैं केवल ये ना पढ़ाऊं कि क्या मैं कर रहा हूँ, बट आपको एग्ज़ैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि क्यों मैं कर रहा हूँ। व्हाई शुड यू यूज इट? वो या आप क्यों, आप वेब सॉकेट मैंने पढ़ाया था कि पोलिंग और वेब सॉकेट क्या होता है। हाँ, यूट्यूब वाले एक प्रोजेक्ट यस। में अगर आपने हाँ, देखा हो, उनका डिफरेंस भी मुझसे पूछा गया है तो पोलिंग और वेब सॉकेट का है भी। ना? हाँ, ये पूछा या जाएगा, हर बार ये क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आप अगर 1 डेढ़ साल एक्सपीरियंस है, तो पता है इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, बट अगर आपको इतना भी आता है, तो वो बहुत बड़ी बात है, मतलब एग्ज़ैक्टली। बहुत बड़ी तो बात। वो हर चीज़ चेक कर रहे थे, ट्री हुँ, शेकिंग क्या होता है, व्हाट रीसेकिंग इज़ एल्गोरिथम्स, हाँ। एल्गोरिथम, और ये सारी चीज़ें नमस्ते रिएक्ट में कवर्ड है। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली वो सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने आई मेक श्योर कि सिंस मैं वो पढ़ा हूँ, मैंने उस पे इतना टाइम दिया है, तो मैं वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कट राइट आंसर्स देके आया हूँ। हाँ, हाँ, ब्राउनी पॉइंट्स, मतलब मैं भी एज़ एन इंटरव्यूअर इफ आई एम जजिंग अ 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मुझे ये चीज़ें इम्प्रेस करेंगी फॉर श्योर, यस, क्योंकि यस, ये अनकन्वेंशनल है, लोगों को नहीं आती है। एंड इफ यू आर एबल टू गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ दिस, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर कि यार इसको इतना पता भी है। भले ही इम्प्लीमेंट ना किया हो, भले ही इन डेप्थ ना पता हो, यस, बट एट लीस्ट यस। नोइंग दीज़ टर्म्स, नोइंग द बेसिक्स कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, राइट। मैटर्स अ लॉट। चलो, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हुँ, वो सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किया, उनको बताया। बट वन मोर एक और पॉइंट था कि इट वाज आल्सो नॉट अबाउट ओनली फ्रंट एंड, बैक हाँ, एंड से भी बैकएंड। प्रॉपर हुँ। क्वेश्चंस पूछे गए, दो इट वाज नॉट इन डेप्थ, बट इट वाज नेसेसिटी दैट यू मस्ट नो अबाउट बैक एंड थिंग्स एज वेल। एंड तो एक एक मैं थोड़ा सॉरी इंटरप्ट करूँगा, बट मैं लोगों को, बच्चों को बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू जस्ट कांट से इन एन इंटरव्यू कि यार मेरे को बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। राइट, राइट, You should know how backend works. You should एग्जैक्टली, know how you can communicate to backend. आपको एपीआईज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना राइट, चाहिए कि आप कैसे इंटरैक्ट करोगे लोगों से। आप अगर आपने कभी इंटरव्यू में ऐसे बोल दिया कि नहीं यार बैकएंड तो मेरे को आता नहीं है या मैं करा नहीं है कभी, नहीं बोलना है। यू हैव टू एट लीस्ट बी एबल टू टॉक अबाउट इट। आप बोल दो कि आपको इन डेप्थ में नहीं पता है, आप बोल दो ये चीज़ कि मेरे को इतना पता है, बट डोंट एवर से कि यार मेरे को बिल्कुल कट ऑफ मत हो जाओ आप बैकएंड से, क्योंकि दैट विल बी अ रेड साइन। क्योंकि एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर यू हैव टू इंटरैक्ट विद बैकएंड डेवलपर्स, यू हैव टू टॉक टू देम, एपीआईज़ में काम होना चाहिए, छोटी-मोटी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पीछे आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है। हाँ, कंटिन्यू अबे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इट। नो, नो इश्यूज़। हाँ, तो हाँ। हाँ, ये बैकएंड के ऊपर मेरे से क्वेश्चन्स पूछा हुँ, गया हुँ। है एंड थैंकफुली मैंने बैकएंड कर रखा था। आई वाज़ नॉट बहुत अच्छा। टोटली फ्रंट एंड, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने ओपन अपने आप को ओपन रखा था बैकएंड की तरफ भी। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। जैसे मेरे एक्सपीरियंस ऑफ टाटा न्यू भी काम आए, क्योंकि मैंने टाटा न्यू के बैकएंड में भी काम कर रखा है। तो वहाँ से मेरे को वो समझ अंडरस्टैंडिंग था एंड देन इट लेड मी टू आंसर्स ऑल द क्वेश्चन्स क्लियरली विद कॉन्साइज़ कि क्या एग्ज़ैक्टली मैं कर रहा हूँ। तो या उसके बाद मैनेजरियल राउंड हुआ था एंड मैनेजरियल राउंड वाज़ आल्सो नॉट दैट ईज़ी। अगर आपको लगता है कि मैनेजरियल राउंड आ My गया है managerial round means hiring manager round, right? या No. हायरिंग हाँ। मैनेजर, हुँ, इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी, बट 30 हुँ, मिनट्स राउंड, इट वाज़ अ शॉर्ट राउंड, बट ये ईज़ी राउंड नहीं था। उसमें प्रॉपर इन डेप्थ सब कुछ पूछा गया है अबाउट डेवलपमेंट, लाइक एवरीथिंग, डॉकर से लेके क्यूबरनीटी से लेके एडब्ल्यूएस से लेके आप रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस क्यों यूज़ करोगे, व्हाई नॉट एंगुलर वगैरह, या आपका प्रेफ़रेंस बैकएंड में क्या होता है, या फिर लिटिल बिट अबाउट प्रिंसिपल सॉलिड प्रिंसिपल्स कि आप ये प्रिंसिपल क्यों यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो।
एंड दिस ऑल थिंग एक्चुअली बीन आस्क्ड एट दैट मोमेंट एंड रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स कि आपने ये स्विगी के एपीआई से इतने बड़े डेटा को कैसे फिल्टर आउट किया एंड ऑल दैट, एंड दैट हेल्प मी आउट बिकॉज अगेन आई नो ऑल द आंसर्स बिकॉज ऑफ यू। सो या तो एक्चुअली एक्चुअली पता है, मैं थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस भी बताता हूँ। या आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट इनपुट अबाउट हायरिंग मैनेजर राउंड। या हायरिंग मैनेजर इज़ द पर्सन हू इज़ गोइंग टू हायर यू, और वो आपको बेसिकली आपके साथ रोज़ काम करना है उसको, उस वो राइट आप उसकी टीम, आप उनकी टीम में जाओगे। ही इज़ द पर्सन हू वांट्स टू मेक श्योर कि यार कोई ढंग का बंदा ले रहा हूँ मैं, जिसको क्यूरियोसिटी हो, जिसको केवल अपने बारे में ना पता हो, थोड़ा आगे भी पता हो कि अ, जैसे आपने बताया राइट, कि आपसे ये चीज़ें पूछी गई थी ओवरऑल कि यार डॉकर क्या होता है, कुबरनेटिस क्या होता है, कि आपको थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट्स के बारे में पता है, नहीं पता है, थोड़ा बहुत यस टीम के बारे में पता है, नहीं पता है। यस फिर आपको टेक्निकली पता है क्या कि आपने कोई एपीआई यूज़ करी है, उसमें ह्यूज डेटा है, तो राइट उसको कैसे करोगे? तो वो हाँ बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई काम करने आ जाएगा मेरे अंडर में, तो वुड ही बी एबल टू सॉल्व दिस, मतलब क्या वो कर यस पाएगा यस काम? तो ये यस इनका एक मेन क्राइटेरिया होता है। सो ऑलवेज़ कीप दैट माइंडसेट कि यार आपको हायरिंग मैनेजर में अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट करना है कि यू आर अ गो टू सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ठीक है? राइट राइट उनके एग्जैक्टली आई जो भी डिड दैट क्वेश्चन होंगे, आपको मैं ना आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सपोज़ आई एम योर हायरिंग मैनेजर, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो एक गो टू पर्सन हो। सो ऑलवेज़ व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, तो झिझक के नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं आता है, नहीं। ऑलवेज़ बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी मिलेगा तो ये भी कर लूँगा, ये भी मिलेगा ये भी कर लूँगा, इसका भी थोड़ा आता है, इसका भी थोड़ा आता है। तो हायरिंग मैनेजर राउंड इज़ मोर ऑफ लाइक दैट। आपको दिखाना है कि यू आर एन अप्रोचेबल पर्सन। अगर कल को हायरिंग मैनेजर आपको कोई काम देता है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, नहीं मेरा तो काम है ही नहीं है। राइट? करेक्ट तो ये चीज़ आपकी टेस्ट करी उन्होंने, बट यस यस तो उन्होंने ओवरऑल हुँ, अगेन मेरे को टेस्ट करा एंड हुँ, थैंकफुली मैंने ये सारी चीजें पढ़ हुँ, रखी थी, हुँ, कहीं हुँ। ना कहीं मुझे नॉलेज था एंड और मैंने पास्ट काम प्रोजेक्ट्स करने हेल्प लगा अ था। लॉट, मतलब या वो आपसे कुछ नया डिज़ाइन कराने को, कोडिंग करने को कम बोलेंगे, बट आपसे राइट पास्ट प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ग्रिल डाउन करेंगे कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, या फिर आपने एग्जैक्टली करा भी है एग्जैक्टली एक्चुअली काम। उन्होंने उन्होंने पूरा ड्रिल डाउन करा, उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर भी पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि स्विगी का आप जो एपीआई यूज कर रहे हो इट्स नॉट अलाउड, सो आप वो कैसे उसको बाईपास कर रहे हो। आई कोर्स। him honestly course वाला relate, first I explained what course is, then I told him honestly कि ये मैंने extension करके मैंने bypass किया just to make my project work, but I wanted to learn इसलिए मैंने करा। तो he actually understood that I'm giving priority to my learnings, to my way of curiosity, I want to understand how things work, और उसी वजह से उन्होंने questions related to their particular team कि वो कौन से टीम में क्या काम होगा मेरा और क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उधर और कैसे वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा उसके ऊपर भी पूछा गया है। तो दिस वाज़ द ओवरऑल राउंड ऑफ ग्रेट। गुडमेन थैंक यू एट सो दैट। मच अभय, मतलब आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि गोल्डमैन सैक्स में आपको कैसे-कैसे करा। चलो, आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग अ लिटिल लॉन्गर आल्सो, बट हम थोड़ा-सा छोटा-सा समराइज़ करेंगे, उसके बाद फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। बट पहले मुझे ये बताओ, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, कि आप आपका भी पैकेज कितना है गोल्डमैन सैक्स में? बता सकते हैं क्या? वो तो अगर मैं नहीं बता एग्ज़ैक्ट, हाँ, सकता। एग्ज़ैक्ट अगर नंबर भी नहीं है, बट मुझे एक बात बताइए कि अगर जो, मतलब जो एसडी वन्स हायर होते हैं, तो उनका राइट। अप्रॉक्सिमेटली रेंज कितना होता है? मतलब आपको रेंज तो पता होगा कुछ? तो राइट जो मेरा यही मानना है कि वो रेंज भी जो होता है पर्टिकुलर सैलरीज के वो डिपेंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस एंड आप हाँ, हाँ। कहाँ से आ रहे हो। बिकॉज गोल्डमैन सैक में ये बहुत माना जाता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस एंड चीज़ें क्या रही हैं। ओके, सो हैज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग जो आप एस डी वन का जो भी फ्रेशर्स हायरिंग होती हैं से फ्रॉम आई गेस द रेंज स्टार्ट फ्रॉम 18 एलपी एंड 18 इट्स एलपीए। yeah, it's go around 24, ओके, 25, 24 एल। नहीं, बट right. सपोज़ So, मैं एक क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करता हूँ कि सपोज़ uh, इफ आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज़ अ 1 ईयर एक्सपीरियंस्ड डेवलपर, ठीक correct, है? तो correct. मैं क्या जाके उनसे 24 एलपीए माँग सकता हूँ? सपोज़ इफ माय करंट सैलरी इज़ 6 एलपीए और 10 एलपीए So, सपोज़। honestly, I हाँ, will हाँ। say वो एक negotiation skills होती ओके। हैं। हुँ, हुँ। Again, thanks to your bonus video, जहाँ आपने क्लियरली वो negotiation skills बताए हुए हैं हुँ, हुँ। एंड मैंने एग्जैक्टली वो फॉलो किया है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द मतलब पर्सन टू पर्सन एंड एम्प्लॉय टू वो कैसे वो हैंडल करते हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करा एक्चुअली। पहले मैं नहीं मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, फ़ोकस नहीं किया था क्योंकि व्हाटएवर आई वाज़ गेटिंग इट वाज़ जीएस। तो मेरे दिमाग में वो था कि गोल्डमैन सैक्स जा रहा हूँ मैं। देन आई अंडरस्टूड कि नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता वो है। यू ऑलवेज़ आई हैव टू नेगोशिएट। या आई आई मस्ट नो माय वर्थ फर्स्ट।
मैंने वो वाली चीज़ मैंने आपकी वीडियो को 2-3 बार देख के पहले नोट्स मैंने पॉइंटर्स बनाए कि एग्ज़ैक्टली क्या बातें करनी है, किस तरीक़े से उनको समझाना है एंड एवरीथिंग। सो आई नेगोशिएटेड टू माय एक्सटेंट एज़ वेरी पर गुड। माय वे, बट या द रेंज दैट आई एम सेइंग वो एनालिस्ट का एक रेंज है, लाइक इवन इफ यू गो इनटू ग्लासडोर एंड समथिंग, आपको वो रेंज मिलेगा एंड दैट इज़ करेक्ट बिकॉज़ मैं वो वही उनकी रेंज ही पूछ रहा हूँ आपसे। रहता है। हाँ, या 18 टू 24 होता है एलपीए व्हिच they particularly give to analysts. ओके। बट या दिस कैन बी इंक्रीज अगर आप नेगोशिएट अच्छा करते हो, अगर आप अच्छे से अपने पॉइंटर्स और अपना वर्क प्रूफ करते हो, प्लस यू आर आल्सो हैविंग अ मल्टीपल ऑफर्स, तो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड एट दैट मोमेंट इट्स वेरी एडवांटेजेस इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ऑफर्स, तो वो उस चीज को कंसिडर करेंगे बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड वो आपको जस्ट बिकॉज ऑफ मनी थिंग आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं मतलब छोड़ेंगे, एग्ज़ैक्ट। मैं नहीं मैं कर वही बोलना चाह रहा था, आखिरी में वही बॉइल्स डाउन, मैंने अपनी बोनस वीडियो में भी यही बताया था कि कंपनीज़ जब आपका इतना रिगरस 1 महीने तक आपके साथ टाइम स्पेंड करके उनको मिल जाता है कि यार ये अच्छा है, इसको हम हायर कर सकते हैं, तो वो 1-2 लाख, 4 लाख के पीछे आपको नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज़ एग्जैक्ट एंड व्हेन यू रियलाइज़ दिस, तब आप नेगोशिएट कर सकते हो एंड देन फॉलो, जैसे आपने बताया ना, आपने नोट्स लेके स्ट्रैटेजी फॉलो करी, राइट दैट्स अ राइट वेरी गुड थिंग टू डू। चलो, दैट्स ग्रेट। सो अगर हम समराइज करें इस पूरे प्रोसेस को, तो अराउंड 1 महीना लगा, आपके 5 राउंड हुए, राइट? एंड देन द फर्स्ट वन वाज़ योर नॉर्मल कोडर पैड काइंड ऑफ अ राउंड। द सेकंड वन वाज़ द टेक्निकल राउंड, जावास्क्रिप्ट जिसमें थोड़ा पूछा। द थर्ड वन वाज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जिधर आपकी उन्होंने ओवरऑल देखा कि यार आप डेवलपर अच्छे हो, आप चीज़ों पे बात कर सकते हो। चौथा राइट राउंड सिस्टम डिज़ाइन, राइट? राइट एंड देन फिफ्थ वन वाज़ योर मैनेजर हायरिंग मैनेजर राउंड। राइट और फिर आपको कितना टाइम लगा था ऑफर मिलने में? 1 वीक, मोस्टली 2 वीक्स? 2 2 मंथ्स हो गए थे, लाइक आई कैन अच्छा, टेल यू ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। एवरीथिंग टुक अराउंड 3 ओके, मंथ्स टोटल, मैं ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं ठीक है। है, हुँ, हुँ। बट अगेन इट टेक मी 1 मंथ, तो इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ा पहले मुझे। सेकेंडली आई विल से नेवर रिलाई ऑन वन कंपनी, लाइक कीप ट्राइंग अंटिल यू नो गेट द ऑफर, फाइनल ऑफर। तो एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू जस्ट ऐड हियर, कोड फर्स्ट ऑफर इज नेवर द फाइनल ऑफर, आपने ही बोला था। तो Exactly. This is दैट्स what I told you in my negotiation video कि यार फर्स्ट ऑफर इज़ नेवर योर फाइनल ऑफर। ऑलवेज़ एग्ज़ैक्टली। रिमेंबर दैट, नो योर वर्थ, और फिर आपको उस पे बिल्ड अप तो करना है। मैं वन प्लस एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे उतना नहीं पता होगा। ये हाँ, सारी हाँ। चीज़ें मुझे पता ही नहीं होगा। मेरे लिए तो वही ऑफ़र ही फाइनल ऑफ़र है। बट आपका वो नहीं, वीडियो even senior people don't negotiate generally, and नहीं, ओके, I feel sad when I talk to them, but अभी तो यस, जो मिलता है मैं उनको बताता हूँ obviously, because see I have done these things in my career, मैंने तो बहुत कंपनीज में अप्लाई किया है, and you if you have a counter offer, फिर तो बहुत ही ज्यादा। आपके पास कुछ नेक्स्ट काउंटर ऑफर था क्या उस समय? सो नहीं। नहीं, मेरे पास कोई अच्छा, काउंटर ऑफ़र नहीं but था, still बट you managed to negotiate. या आई मैनेज्ड टू Kudos डू to इट। you man, right? I mean kudos to you if you are थैंक able यू। to do that. बहुत या, अच्छा लगा अबे आपसे बात करके। मतलब दिस वाज़ थैंक अ यू। वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, एंड आई होप कि पीपल हू आर वाचिंग दिस वीडियो वुड डेफिनिटली गेट इंस्पायर्ड बाय यू एंड कैन आल्सो सी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मोर देन 100-150% से ज़्यादा हाइक हुआ था, राइट? सो राइट, सो फॉर ऑल द पीपल हू आर लिसनिंग टू दिस, लेट मी टेल यू कि यार ये हाइक्स पॉसिबल हैं। आप बस कंफर्ट ज़ोन में मत आओ। मैं बताऊँ, मैं अगर समराइज़ करूँ जितनी मेरी कन्वर्सेशन हुई है अभय के साथ, जितना भी मैंने बात करा है, व्हाट आई फाउंड इज़ कि अभय बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे मुझे, कि इंस्पायरिंग इस चीज़ से लगे मुझे कि वो एक्चुअली उन्होंने गिव अप नहीं किया। बहुत लोग कंपनीज़ जॉइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो गिव अप कर लेते हैं, एकदम बैठ जाते हैं चैन से कि यार हो गई है यार, अब मुझे हसल नहीं करना है, गॉट अ जॉब। बट ऐसा कभी नहीं करना है, आपको हमेशा एम करते रहो कि क्या आप बेस्ट कर रहे हो। क्या ज़रूरत थी अभय को कि यार लिंक्डइन पे पोस्ट लिखने लगे, या फिर क्या ज़रूरत थी बताने के लिए कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ? नहीं, बट उन्होंने पढ़ाई करते रहे एंड देन ही नेवर गिव अप, और फिर जैसे ही उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी आई लिंक्डइन से, आप एचआर ने रिक्रूट करने के लिए उनको मैसेज किया, एंड देन ही फाइनली ऑल दैट हार्ड वर्क दैट ही वाज़ डूइंग सिंस सो मेनी इयर्स लर्निंग एवरीथिंग, जस्ट केम अप, और वो सारा बाइंड अप हो गया, और it made a great interview, right? So, congratulations Abhay for your, थैंक यू सो मच for your success, and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। We'll soon एंड थैंक connect यू अक्षय anytime फॉर soon, मेकिंग आवर लाइफ बेटर। and then just spend more time in the industry for some more time, and then maybe after a year, after 2 years, we'll again uh, get back into a call, record something, and we'll know your experience. And I'm pretty sure कि अभी आप इतना हसल कर रहे हैं, आगे भी और हसल करके और ही बहुत अच्छी चीज़ों पे जाएँगे और बहुत आगे तक जाएँगे।
तो डेफिनेटली, कांग्रेचुलेशंस डेफिनेटली। अबे। या जस्ट लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाँ, ऐड एंड कोट हियर। यस। मैं बस इतना ही बोलूँगा गाइज़, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? कीप अप्लाइंग, बट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है अब मैं फेस समझ रहा हूँ, हाँ, लाइक यस मेरे को अप्रोच करते हैं टू रेफरल एंड ऑल के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लाइक आई फील कि मैं उसके ऊपर पोस्ट करना चाहता था, बट आई विल टेल हियर बिकॉज़ इट विल रीच हाँ, मेनी टेल ऑडियंस। मी, टेल टेल एवरीबॉडी, कुछ एडवाइस प्रॉब्लम आपको देनी है तो हाँ, या गिव इट। प्रॉब्लम बस ये होती है कि लोग जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ के आते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। सेकेंडली व्हेन दे एक्चुअली टेक्स्ट एनीवन इन लिंक्डइन, दे डोंट सेंड देयर रिज्यूमे करेक्टली। दे डोंट। उनको रिज्यूमे सही से देना नहीं आता, उनको ये बताना नहीं आता है कि व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, वो इधर कैसे अलाइन हो रहे हैं। बस वो जॉब प्रोफाइल का लिंक डालेंगे और बोलेंगे प्लीज़ सर रेफर। रेफर मी। तो आप उनका रिज्यूमे खोलोगे तो 50% का तो है ही नहीं उसमें। लाइक नथिंग इज़ देयर एंड आई रिजेक्टेड। तो मुझे ये फ़ील होता है कि अब मुझे भी समझ आ रहा है कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, जब सामने वाला क्यों नहीं रेफर कर रहा होता है एंड यू फ़ील इट कि मैं सब ट्राई कर रहा हूँ। नो, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। तो अगेन आई विल रिकमेंड टू हाइली सी अक्षय's वीडियो यूट्यूब में और एनीवन एल्स वीडियोज़ जिसमें रिज्यूमे के बारे में प्रॉपर डिस्कशन हुआ है रिलेटेड टू टेक्निकल, कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना, कैसे स्टैंड आउट करना है। सेकेंडली, नेवर ओनली रिलाई ऑन रेफरल एंड अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन डायरेक्टली और जस्ट जॉब अप्लाइंग, क्योंकि आपको जॉब पोस्ट में 10,000 लोग सेम तरीके से अप्लाई कर रहे हैं एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आता कि क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे डेवलपर्स होंगे और मे बी आपसे बेटर होंगे, बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इज हाउ यू अप्रोच टू दैट। ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू थिंक लाइक दिस एंड यू कैन सॉल्व इट बाय ओनली डूइंग राइट नाउ द पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज़ आजकल पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्पोर्टेंट है। है और आप पर्सनल ब्रांडिंग करते रहो। आई कैन अश्योर यू विद अक्षय, बिकॉज़ अक्षय ने मुझे एश्योरिटी दिया तो मैं आप लोग को देता हूँ। विदिन 5 टू 6 मंथ आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कंपनीज़ खुद आएँगी खुद आपके आएँगे। पास, को बोलेंगी कि हे अभय और हे एनीवन लिसन, वी लाइक योर दिस, डू डू यू लाइक टू जॉइन अस? और आई कैन टेल यू अक्षय मुझे अभी भी आती हैं। इट्स नॉट अबाउट गोल्डमैन, इट्स हाँ, अबाउट द वर्क। डेफिनिटली। तो मेरे को आपने अभी जो भी आता अपना रहता ब्रांड है। बनाया है दैट ऑलवेज एग्ज़ैक्टली, स्टेज विद यू और आप उसको बस बिल्ड ही करते जाते हो। एग्ज़ैक्टली, देखो ये पता है ये गेम थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा-सा इन्वेस्टिंग है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम और सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5-6 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे खुद आ रही है। आई डोंट इवन हैव टू अप्लाई। मेरे को या वही इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मेरे को इतनी सारी लिंक्डइन से अपॉर्च्युनिटीज़ खुद मिली है। आज भी मुझे रोज़ इतना ज़्यादा हेल्प हुआ है मुझे लिंक्डइन से कि बट पीपल डोंट यूज़ इट इन अ गुड वे, तो फिर क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट लोग अगर रेफरल के लिए पूछते भी हैं तो लोग चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, कुछ डाल देते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो समझ आ नेवर, जाता है। नेवर वो समझ आ जाता है। दूसरा जो है और आप किसी से बस ऐसे ही रिज़्यूम भेज दिया रेफरल के लिए, रेफर मी ऐसे नहीं होता है। आपको राइट, आना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो एंड दैट प्रेज़ेंटिंग इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट स्किल यू शुड लर्न। चलो, डेफ़िनिटली। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस थैंक यू। conversation is going a little longer. We can end this डेफ़िनिटली, today. Any या। last thoughts you would like to give before we end this? I will say all the best to everyone who is doing, whether you are fresher, whether you are experienced. Let me tell you guys, follow the right person, believe in yourself, trust in yourself, and just keep doing it. Because if you do it, nobody but I think God is actually seeing you and will give you the right moment to taste the part of success that you want. So yeah, Exactly. God is seeing you. Keep working hard. Chalo. yes. Bye bye. Bye bye.